is fantastic to be here. And I would like to congratulate Anil ji and also Deepak ji, Ranjan ji and Prince ji for giving me this honor to be here इनके inauguration के ऊपर Cineport के inauguration के ऊपर जो concept है वो मुझे बड़ा amazing लगता है because like he said this is one of a kind concept. You know, it's almost like a theater kind of experience where you're going to see multiple kind of sources of entertainment. इसमें plays होंगी, stand-up comedy होगा, you know, फिल्में भी दिखाई जाएगी, and there's a membership for it, so you can be constantly updated with whatever is happening, and it's going to be genuinely something which is very exciting and new, and I hope I get the membership as well. Thank you very much. Punjab is rocking. Punjab is really rocking. अभी एक हाल ही में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है which I've been associated with, जिसका रिलीज 25th को है. उसका फ्लेवर पंजाब का है. हम अगर हो सके तो आज उसका प्रोमो भी देख लेंगे. एंड नाम है बंदा सिंह चौधरी. सो it's a film on national integration actually, and you know how somebody who fights for his land and all of that. तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. प्रोडक्शन और एक्टिंग जी ज़्यादा अभी देखो एक्टिंग तो मैंने कर ली है और करता रहूँगा ज़िंदगी. वहीं से मेरी शुरुआत हुई है, उसकी वजह से मुझे मौका मिला है प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने का, चैट शोज़ करने का. तो वो जो मेरी एक पहली मोहब्बत है. लेकिन जब मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कुछ हद तक ये डिसाइड कर पाता हूँ कि मुझे क्या कहानी बनानी है, किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, कौन से एक्टर्स चूज़ करना है, उसका फ्लेवर क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, उसकी रिलीज़ कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी. तो उन सब चीज़ों पर एज अ फिल्म मेकर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਨੇਪੋਰਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. entire mall, this PPR mall, which is owned by Chopra साहब, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, अनिल चोपड़ा साहब. दीपक सर है, he owns सिनेपोर्ट क्लब के पीछे क्या मंशा है, किस तरीके से ये नए एंटरटेनमेंट की ऑफरिंग्स आपके साथ होगी. उससे पहले मैं कुछ खास लोगों को बुलाकर यहाँ पर समय जलाकर हम इस सिनेपोर्ट क्लब की शुरुआत करेंगे आज. तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा चोपड़ा जी को, अनिल चोपड़ा जी सर, प्लीज आइए. इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर प्रिंस चोपड़ा जी को. इसके बाद दीपक शर्मा जी को. साथ ही साथ राजन चोपड़ा जी को. मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट अरबाज खान साहब को बुलाना चाहूंगा. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, प्लीज आइए. और इनसे दरखास्त करूंगा कि ये समय जलाकर इसका उद्घाटन करें. प्लीज आइए, सब लोग आइए.
सिनेपोर्ट क्लब की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। मैं डिग्निटरीज से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाएं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Shukriya for such a warm welcome. It is fantastic to be here. And I would like to congratulate Anil ji and also Deepak ji, Ranjan ji and Prince ji for giving me this honor to be here. इनके inauguration के ऊपर, सिनेपोर्ट के inauguration के ऊपर जो concept है वो मुझे बड़ा amazing लगता है because like he said this is one of a kind concept. You know it's almost like a theater kind of experience where you're going to see multiple kind of sources of entertainment. इसमें plays होंगी, stand-up comedy होगा, you know, फिल्में भी दिखाई जाएगी and there's a membership for it, so you can be constantly updated with whatever is happening and it's going to be genuinely something which is very exciting and new and I hope I get the membership as well. Thank you very much. So sweet of you. Thank you very much. Thank you everyone for coming. Thank you Arbaz ji for making it on a short notice. सिनेपोर्ट क्लब जैसे आपने ऑलरेडी समझ ही लिया है कि मेंबरशिप ओनली क्लब है जिसमें जो लोग आएंगे उनके लिए स्पेशली क्यूरेटेड प्रोग्राम्स हम अराउंड द ईयर चलाएंगे। थिएटर के लिए ज़्यादा कुछ पंजाब में था नहीं तो हमने देखा है एज एन अपॉर्चुनिटी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डिस्कनेक्ट होती जा रही है थिएटर से। सो लाइव परफॉर्मेंस, थिएटर, इवन live streaming from some of the best shows in the world will be available here and we will also pair it with great food and great time. So welcome everyone. We look forward to having you as members. Thank you. It will be like cinema on invitation. Okay. The content on invitation. Okay. तो अब मैं गुजारिश करूंगा चोपड़ा जी आप प्लीज बात कीजिए प्लीज। आज सिनेपोर्ट के उद्घाटन के ऊपर मैं दीपक जी को और अपने बाकी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि पंजाब में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दीपक जी यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसमें लाइव शो भी होंगे। अभी हमारे सिटी में लाइव शो के लिए कोई ऐसे थिएटर नहीं थे जिससे जो यंग ब्लड है वो लाइव शो को चाहता है और उसका परफॉर्मेंस कर सके। सो सिने क्लब में आपको लाइव शो भी मिलेंगे, सिनेमा भी मिलेगा, खाने पीने की चीज़ भी मिलेगी, बार भी है, हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे है। दीपक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में वो जलंधर में ही नहीं पंजाब में इस तरह के क्लब खोल के पंजाब के लोगों की सेवा कर सकें। धन्यवाद। There you will experience theatre and live shows, live streaming and food, and we have multiple cuisines and like North Indian, South Indian, international food court. I am sure our city will definitely cherish this moment. Thank you. थैंक यू मिस्टर प्रिंस। रजनी भाई आप भी बात कीजिए प्लीज। आज के इस शुभ समारोह के अवसर पर मैं अरबाज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर आए और हमारे जलंधर को उनके साथ मिलने का एक मौका दिया गया है। ये जो हम सिनेपोर्ट जो आज खुल रहा है ये दीपक जी की सारी मेहनत है। इन्होंने इस ब्रांड को इतना पुराना टाइम से इतना चला रहे थे इतना, और इसमें नया कंसेप्ट जो लेके आए हैं ये जो थिएटर का मूवीज दिखाने का, एक्चुअली यहाँ पे आर्ट थिएटर का कोई अच्छा कंसेप्ट के लिए जगह ही नहीं थी, तो उसके लिए जो कंसेप्ट है जिसके साथ अच्छा खाना और अच्छा नृत्य देखना, कोई भी चीज़ें देखना, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखना, उसके लिए एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे सारे जलंधर वासी इसको बहुत ज़्यादा आनंद लेंगे इस चीज़ में। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दीपक जी को कि इन्होंने हमारे ग्रुप के साथ मिलके यहाँ पे ये खोला है और हम आगे भी इनके साथ ऐसे कोलैबोरेट करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। Punjab is rocking. Punjab is really rocking. जी बिल्कुल, हर फील्ड में, सिनेमा में ही नहीं हर फील्ड में दे आर डूइंग इट यार। और आज आप पंजाब आए हो, जलंधर में पहुंचे खासकर, तो कैसा लग रहा है? और दूसरा ये कि पंजाबी फिल्मों को लेकर आपकी क्या? Of course, like I said, कि you know, it's a great industry, बहुत अच्छा काम हो रहा है. Now they are getting a kind of a universal audience
या तो कभी कभी रीजनल फिल्मों की ऑडियंस रिस्ट्रिक्टेड होती थी उसी रीजन के अंदर, उसी जो कम्युनिटीज़ के अंदर, या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं. बट टुडे इट्स हिटिंग ऑल अक्रॉस. People are watching even regional film subtitled, because they want to get connected with the emotion. So I guess it's very, very good times for Indian cinema and Punjabi cinema and everything. So it's बहुत अच्छी बात है ये. आप भी पंजाबी फिल्मों की तरफ वोट कर रहे हैं, पंजाबी फिल्में बनाना चाहते हैं? अभी एक हाल ही में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है विच आई बीन एसोसिएटेड विद, जिसका रिलीज 25th को है. उसका फ्लेवर पंजाब का है. हम अगर हो सके तो आज उसका प्रोमो भी देख लेंगे. इस फिल्म का नाम है बंदा सिंह चौधरी. बंदा सिंह चौधरी. सो it's a film on national integration actually, and how somebody who fights for his land and all of that. तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. तो it's of course it's a mainstream cinema based on some inspired incidents and all that stuff, but it's a very exciting film. Great music. उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. उसके अंदर बी प्राक का एक गाना है, उसके अंदर सुखविंदर जी का गाना है, सुनिधि चौहान का गाना है. तो दे हैव गॉट सम रियली गुड म्यूजिक इन इट ऑल्सो. तो आज ही हमने एक गाना रिलीज़ किया है. फिल्म का प्रोमो हमने कुछ 2-3 दिन पहले रिलीज़ किया था, विच इज़ गार्नरिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट. सो क्वाइट एक्साइटेड. तो उसका एक फ्लेवर पंजाब का ही है. तो आपने मुझसे पूछा अगर हम कहीं एसोसिएट होना चाहते तो ये हमारा पहला एक वेंचर है एसोसिएशन का. जी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर आ रही है. जी. सर दबंग 4 का मैंने ट्रेलर देखा, तो उसकी रिलीज डेट नहीं आपने देख लिया, मैंने तो देखा ही नहीं, ना बनाया मैंने. आपने कहाँ से देखा? आप अभी फेक चीजों पे बहुत ध्यान दे रही हैं. ये जमाना यही हो गया आजकल, कुछ अलग ही. नहीं आपने बोला मैंने दबंग 4 का ट्रेलर देखा है, मैंने बनाया ही नहीं, तो आपने देखा कैसे? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तक उसके ऊपर काम भी मतलब चल रहा है. मतलब वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट. इट इज इन, मैं क्या होता है, आई डोंट नो दैट इट इज इन द पाइपलाइन, बट आई डोंट नो द टाइमलाइन. पंजाब में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पंजाब में लोग सबसे अच्छे तो लोग हैं यहाँ के, फिर उसके बाद सारी चीजें. ठीक है ना प्रोडक्शन और एक्टिंग जी. ज्यादा अभी देखो एक्टिंग तो मैंने कर ली है और करता रहूँगा जिंदगी. वहीं से मेरी शुरुआत हुई है, उसकी वजह से मुझे मौका मिला है प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने का, चैट शोज करने का. तो वो जो मेरी एक पहली मोहब्बत है और जिसकी वजह से मुझे एक बोलते ना फुट होल्ड मिला इंडस्ट्री में, तो वो तो हमेशा रहेगा. और वो मैं किसी भी वजह से उसको मतलब अनटिल अनलेस लोग मुझे लेना बंद कर दें, नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं एक्टिंग छोड़ सकता. बाकी आई एम एंजॉइंग बिहाइंड द सीन्स. अभी जो फिल्म मेकर बनने में एक थोड़ा सा जो क्रिएटिव कंट्रोल आपके हाथ में ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ गुड प्रोसेस. बिकॉज एज एन एक्टर आई गेट रिस्ट्रिक्टेड कि जो मुझे रोल ऑफर होगा उसमें से ही मुझे करना है. लेकिन जब मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कुछ हद तक ये डिसाइड कर पाता हूँ कि मुझे क्या कहानी बनानी है, किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, कौन से एक्टर्स चूज़ करना है, उसका फ्लेवर क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, उसकी रिलीज़ कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी. तो उन सब चीज़ों पर एज अ फिल्म मेकर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. तो आई एम एंजॉइंग दैट. यार बिहाइंड द सीन इज ऑल्सो लॉट ऑफ फन. सर जो यंगर्स हैं जो बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, कैसे उनको एडवाइस करेंगे? आई थिंक हर चीज़ के अंदर देखो, इस कंट्री के अंदर फिल्म एक्टर बनना इज ऑलमोस्ट लाइक बिकमिंग अ क्रिकेटर. एक ज़माने में आप देखो कि एक इंडियन टीम होती थी, आपके 11 प्लेयर होते थे, उसमें से आपके ओपनिंग बैट्समैन 2 होते थे, फिर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, फिर एक ऑलराउंडर, फिर एक स्पिनर और फिर आप फास्ट बॉलर. अभी आप क्या खेलोगे? और वो टीम में बनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में कितने लोगों को चांस मिलेगा? तो सिमिलरली फिल्म इंडस्ट्री का भी आप देखो तो कंपटीशन बहुत हाई है. ऐसा तो नहीं कि हर कोई मतलब एक्टिंग के लिए अगर इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल 100% हो जाएगा. बट यू नेवर नो, बहुत से कोशिश करोगे और आपकी कामयाबी मिल सकती है आपको. बट like I said, it's a tough line because openings are less. Like I said, like to be a cricketer in this country, how many people play cricket? How many people can be selected? Same thing in the film industry. कुछ actors हमारे 10, 12, 15 bankable actors है, उसमें आना मेहनत का काम है, लक भी इन्वॉल्व है. आप मेहनत करते रहो, शायद लक चमकेगी. कहते हैं कि उनको अपना आगे पहुंचना पड़ता है, डायरेक्टर के आगे जाओ, कैसे Sorry? तभी जाकर फिल्में मिलती हैं. नहीं सब ये सब बोलने की बात है. हर इंडस्ट्री के बारे में ऐसे ही बोला जाता है.
this is not there is not 100% reality in something. कोई stray incidents अगर किसी के साथ कुछ हुआ होगा, that does not define the industry कि कोई इस वजह से industry define नहीं होती कि भाई ये होगा तो ही कुछ होगा. ये सब गलत बातें हैं और ऐसी बातें पूछना भी नहीं चाहिए और ना मतलब आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड टू इसका जवाब भी देना. प्रिंस सर, मेरा क्वेश्चन आपकी साइड सर, यहाँ हूँ मैं. सर मेरा क्वेश्चन आपसे प्रिंस सर कि आपको कैसा लग रहा है कि अरबाज सर हमारे पास आए हैं, सिनेपोर्ट की इनॉग्रेशन है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जालंधर को मिल रहा है, तो व्हाट वुड यू वांट टू से? ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा है. अब्बास भाई की भी हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो आई एम श्योर कि वी हैव कम अप विद अ न्यू concept and we discussed with Deepak ji, so this will be a new concept in the city where you will get theatre and international food, everything. Thank you. दीपक जी, इसकी सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप कितनी होगी और इसकी टारगेट ऑडियंस आपकी प्रीमियम क्लास रहेगी या मिडिल क्लास के लिए भी आपने टारगेट किया है कि मिडिल क्लास भी इस सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप ले सके? सो वैसे मेंबरशिप ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस चीज़ को अप्रिशिएट करने का जो क्लाइंटेल है वो थोड़ा इवॉल्व क्लाइंटेल चाहिए हमको. रेगुलर क्लाइंट शायद इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए एक क्लब के अंदर मेंबरशिप लेके. तो जो लोग शाम को अप्रिशिएट करने के लिए मूवीज़ देखते हैं या कहीं क्लबिंग करने जाते हैं, जो रेगुलर एंटरटेन होने के लिए बाहर निकलते हैं, वही हमारा ऑडियंस है. 25 से 45 साल तक का जो ऑडियंस साइज़ है वही हम लेके चल रहे हैं इस मार्केट में. और थिएटर थोड़ा डिस्कनेक्टेड होता जा रहा है मेन स्ट्रीम से, तो हमारा प्रयास होगा कि थिएटर को वापस मेन स्ट्रीम में लाएं. जो नई जनरेशन है उसके पास पेशेंस थोड़ा कम है, तो थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे आर्ट को, तो धीरे धीरे जो है वो आर्ट फॉर्म जो है थोड़ा और पॉपुलर होगा. और ग्लोबली भी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बड़ा मार्केट है. हमने पहले थोड़ा कोरियन कंटेंट को इंडिया में लाइव स्ट्रीम करके देखा है. काफ़ी लोग जो स्पेशली यंगर जनरेशन है वो बहुत एक्साइटेड होती है उस चीज़ को देखने के लिए. क्रिकेट मैच भी हम दिखाते हैं वैसे तो आजकल थिएटर के अंदर, तो काफ़ी मज़ा आएगा. ज़्यादा महंगी नहीं है मेंबरशिप. हमारी टीम बाहर है, वो हेल्प कर देगी प्रोसेस के. अरबाज सर, मैं पूछना चाहता था कि क्योंकि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं पंजाब में आते हैं, ज़्यादा स्टेट में भी जाते हैं, खासकर तो गोल्डन टेम्पल भी आते हैं, लेकिन कुछ जो कलाकार हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, खासकर कंगना रनौत जो पंजाब के. मैं इस सवाल का कैसे जवाब दूं? आप मुझे, मैं इधर आया हूँ प्रमोट करने के लिए, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं, मैं आपसे कंगना जी के बारे में आप पूछ रहे, व्हाई वुड आई वांट टू गिव एन ओपिनियन ऑन दैट? हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस से तारुफ रखेंगे जो कि सिनेपोर्ट क्लब से जुड़े हुए हैं. अरबाज भाई प्लीज. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बोला कि मूवीज की स्क्रीनिंग जो होगी वो ऑन इनविटेशन होगी, तो प्लीज उसको आप थोड़ा सा क्लियर करें कि वो कैसे होगा. देखो, एक रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं होगी. जो मूवीज रहेगी, जैसे कि वेट टाइम करके एक बड़ी फिल्म आ रही है जिसमें अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत है, वो फिल्म 10 तारीख को रिलीज हो रही है. 10 तारीख को एक रेगुलर रिलीज होने के साथ साथ इसकी एक साइमल्टेनियस रिलीज होगी जो ब्लॉक बुकिंग के दौर पर हम करेंगे. उस ब्लॉक बुकिंग में उन्हीं लोगों को अलाउ होगा ब्लॉक बुकिंग जो कि सिनेपोर्ट क्लब के मेंबर्स. तो इसमें स्क्रीनिंग भी होगी और स्क्रीनिंग के साथ भाई कई बार कोशिश ये होगी कि हम कुछ कॉन्टेस्ट रन करें जिससे कि जो टैलेंट है फिल्म से जुड़ा हुआ वो भी यहाँ आ सके. So that is the way we are looking out at cinema. और besides cinema तो performing arts में तो खुद पंजाब में कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी लाइनअप हमने ऑलरेडी क्रिएट की. तो इसके बाद हम एक आखिरी प्रश्न लेंगे प्लीज. अनिल जी, एक कौन सा सिनेपोर्ट क्लब का आइडिया कैसे आया कि जालंधर में सिनेपोर्ट क्लब की जरूरत है? ये किसने इनिशिएटिव लिया था इस क्लब को? जालंधर हमारा एक फिल्म सिटी है. पंजाब में अगर मैं कहूँ कि पंजाबी फिल्मों का सेंटर जो है वो जालंधर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा क्लब नहीं था जिसमें ये सारी फैसिलिटी दी जा सके, जिसमें लाइव परफॉर्मेंस भी हो, सिनेमा भी हो, इंटरनेशनल फूड कुजीन भी हो और लोगों में इंटरटेनमेंट के लिए बार भी हो. एवरीथिंग वी हैव नाउ हियर. तो इसी आइडिया के साथ जब हमने देखा कि दीपक जी मैं इनके गुड़गांव सिनेपोर्ट देखने गया, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे शहर में भी आके आप ऐसा एक प्रोजेक्ट लगाओ, तो इन्होंने मानी.
राजन सर, माय क्वेश्चन टू यू कि जलंधर में जैसे हमारे विरसा विहार है, ठीक है, देश भगत यादगार हॉल है, वहाँ पे मतलब सारा कुछ चलता रहता है। उसके बाद सिनेपोर्ट हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे प्लीज सर? बेसिकली जैसे विरसा विहार है, ये कह सकते हैं कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें एक तो उन चीज़ों से अलावा वहाँ पे सिर्फ जैसे पंजाबी फूड मिलता है या हमारा इधर का नॉर्दर्न फूड मिलता है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की कुजीन यहाँ पे रखी गई है। तो एक वहाँ पे क्या होता था कि थिएटर के अंदर जैसे आप कोई डाइनिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। हमारा अगर आप दूसरा ऑडी देखेंगे तो वो सारे 180 रिक्लाइनर्स हैं, मतलब वो एक तरह का बेड बन जाता है, वो सीट है वो एक तरह का बेड बन जाती है। तो आप वहाँ पे आराम से अपने घर वालों के साथ आके आराम से मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे जैसे सिनेपोर्ट प्लान करेगा अकॉर्डिंगली टू दैट। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, मतलब जिसमें दोनों चीज़ों का एक कोलैबोरेशन है, लाइक आपका डाइन, आपका मौज मस्ती सब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि सारे ही प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए। उसके बाद प्रेस रिलीज आपके पास रहेगी जहाँ पर सारी डिटेल में सिनेपोर्ट क्लब के बारे में दिया गया है। अब मैं कुछ 2 या 3 डिग्निटरी से मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आकर बुके से अरबाज भाई का स्वागत करें। प्लीज आइए आप। मीनू जी, मीनू शर्मा जी है जो सिनेपोर्ट क्लब की को ओनर है, आप प्लीज स्वागत कीजिए। थैंक यू दरबाज भाई। दूसरे आपको रुकना पड़ेगा और जी, कुछ देना चाहते हैं आपको। राहुल आप आइए। राहुल हेड्स द मॉल, ही हेड्स द एंटायर मॉल। थैंक यू राहुल। पैन इंडिया एंड ही इज एक्स सिनेमैक्स, एक्स बिग, एक्स कार्निवल आल्सो। And request everybody to take the back door. Thank you, Arvind bhai, to come. I'm so happy. He is one of the part of Cinepoort Club. तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो शोरील दिखाते हैं जो हरमन बवेजा साहब की है। उसके बाद this was the welcome. And a very, very warm welcome to everyone there. Firstly, a big congratulations to the team of Cinepoort and of course the team of BFC. To put together this amazing concept of live performing arts and cinema viewing at this Cinepoort Club in the heart of Jalandhar, I think is just amazing. मेरी सारियों ने request है छेती जाओ this Cinepoort Club की membership ले आओ. Along with that, I think very soon there's a film releasing on the 10th of this month called Veteran The Hunter with the superstar Rajinikanth and the legendary, of course, Mr. Amitabh Bachchan. So do get your tickets for that and enjoy the experience at the Cinepoort Club. Tashika. Okay. चलिए, थैंक यू। Thank you. सो मेरे साथ इस समय खड़े हैं सिनेपोर्ट के जो है को फाउंडर मैम मीनू दीपक शर्मा। सो मैम, आपके दिमाग में कैसे आया कि आपने ये प्रोजेक्ट जो है जलंधर में लॉन्च करना है? बेसिकली पंजाब के जितने भी लोग हैं ना, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी यू नो दे आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड दे हैव अ क्रेज फॉर सिनेमा। सो आई थिंक पंजाब में जलंधर से बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती थी टू लॉन्च सिनेपोर्ट क्लब एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव इट्स यू नो ओपनिंग हेयर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जितनी ज़्यादा उनके अंदर फिल्मों को लेके एक्साइटमेंट रहती है उतनी ही एक्साइटमेंट से वो आएँ और सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप को अवेल करें। और मैम, जलंधर वालों को इससे मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, मतलब क्या नया है उनके लिए? सो एज दे ऑल सेड दैट इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे या इट्स अ क्लब एंड सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लब में लेके आए हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो जब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक सिटी में हम लेकर आते हैं तो उनके लोगों के लिए, उस शहर के लोगों के लिए भी ये एक बहुत नई चीज़ होगी एक्सपीरियंस करने के लिए, प्लस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे भी हमें और उनको भी। थैंक यू सो मच मैम। और मैम ने बताया कि सिनेपोर्ट अब जलंधर में आ गया है तो डेफिनेटली जलंधर वाले जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आर्ट लवर्स जलंधर में है ही और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है।
थैंक यू सो मच। सो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सिनेपोर्ट के फाउंडर ओनर दीपक शर्मा जी। सर, आपने ये प्रोजेक्ट जलंधर में लेके आए, इससे पहले गुरुग्राम में था, राइट? तो जलंधर में इस प्रोजेक्ट को लेके आने का आपका क्या मकसद है और दिमाग में आइडिया कैसे आया कि ये सारी चीज़ें जैसे खाना पीना, सिनेमा, आर्ट जो है, थिएटर जो है, इसको इकट्ठा किया जाए? आपने जितने वर्ड्स यूज़ किए इसके बाद एक ही पंजाब के अलावा कुछ समझ आता है बताओ? पंजाबियों में अच्छी बात क्या है ना कि कोई भी अच्छी चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ कौन पहनता है? पंजाबी। सबसे ज़्यादा ब्रांडेड गाड़ियाँ कौन लेता है? पंजाबी। तो जब ये सारी बातें, तो शौक है जी, लेकिन अगर कोई वेन्यू ही ना हो तो शौक कैसे पूरा करेंगे वो? तो हमने ये जगह बनाया है शौकीन लोगों के लिए जो पंजाब में हैं। जलंधर के पास में लुधियाना भी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो जितने मेंबर्स होंगे हमारे पास, एक तो ज़्यादा मेंबरशिप देने के लिए नहीं है, 500 ही मेंबरशिप है हमारे पास। अब वही अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। तो हम केवल फिल्टर कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो साथ में बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, जो सबके लिए जगह ओपन नहीं है जी। और बाकी आपने देखा ही, एक रिक्लाइनर ओनली ऑडी है जो कि बड़े से बड़े बढ़िया सिनेमा घर में भी नहीं होता, हमारे पास है। मैचेस दिखाएंगे यहाँ पे, लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएंगे, तो ये चीज़ ही पूरा का पूरा अलग हो जाता है जो किसी के पास है नहीं। और छोटी सी कोजी सी जगह है, हमने इसको क्लब की तरह बनाया है। अब हर वीकेंड सारे लोग यहीं आना चाहेंगे। और जो इंटरनेशनल फूड कोर्ट में हमारे ब्रांड्स भी हैं, वो इंडिया में ही पहली बार है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वो ब्रांड मिलते हैं। तो लोग इसको एंजॉय करने के लिए आएंगे और हम उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली, और इसके लिए आपका थैंक यू कि आपने जलंधर वालों को एक परफेक्ट प्लेस जो है वो दे दी है कि आप यहाँ पे आओ, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आइए, आप हमारे मेंबर बनिए और यहाँ पे एंजॉय करिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कुणाल चावरिया जी, जो कि सिनेपोर्ट पैन इंडिया के ऑपरेशंस हेड हैं। और सर का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंजाब में, जलंधर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, आपका सिनेपोर्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में और पंजाब को रिलेट करके आप इसको कैसे देखते हो? पंजाब हमेशा से ही बहुत हैपनिंग रहा है। लोग पार्टीज़ हो, क्लबिंग हो, लोग हमेशा खुश रहते हैं। एंटरटेनमेंट उनको हमेशा से चाहिए होता है। तो सिनेपोर्ट ने उसी को कैपिटलाइज करने का पूरा जो स्कोप और प्लान और प्रोजेक्ट जो किया है, उसी को लेके सिनेपोर्ट इट्स ऑलवेज एक हैपनिंग चीज़ करता है, कुछ इनोवेटिव हमेशा से ट्राई करता है। जैसे हम सिनेपोर्ट सिनेमाज, हमारा जो मल्टीप्लेक्स है, वी आर दी ओनली मल्टीप्लेक्स इन दी इंडिया जो टिकटों के साथ में पॉपकॉर्न फ्री देते हैं। अब आप सोचो, कहीं पे कोई भी मल्टीप्लेक्स है, कोई पॉपकॉर्न फ्री नहीं देता। दैट्स दी यूनिक स्ट्रैटेजी, हमारे कंप्लीटली जो हमारे चेयरमैन है, जो हमारे डायरेक्टर्स है, उनका ये विजन हमेशा से रहा है। सो दैट इज़ दी वन पॉइंट। एंड सिनेपोर्ट क्लब को लेके द कॉन्सेप्ट इज़ एक अलग कंटेंट हो, एक अलग तरीके का माहौल हो, एक लाउंज और ऑडिटोरियम, लाउंज और लाइव स्क्रीनिंग को कैसे कंबाइंड किया जाता है, वो इस कॉन्सेप्ट में आपको पता चलेगा। एवरी वीकेंड यू विल सी सम लाइव शोज हैपनिंग, सम कल्चरल इवेंट्स हैपनिंग, प्राइवेट स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, कॉमेडी शोज हो रहे हैं, ओपन माइक हो रहा है, गज़ल नाइट हो रही है, शायराना शनिवार हो रहा है, एंड ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स गोना बी हैपन हियर। मतलब एवरीथिंग इज अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब आपने सब कुछ जो है इकट्ठा कर दिया है। स्पेशली आप सोचो, आप लाउंज एक्सेस कर रहे हो, लाउंज के साथ में आपको ये स्पेशल स्क्रीनिंग का प्रिविलेज मिल रहा है। सो ये ओवरऑल द कॉन्सेप्ट इज दैट। एंड डेफिनेटली जो हमारे मेंबर्स होंगे उनको पूरे साल की मेंबरशिप मिलेगी। उस मेंबरशिप के साथ में उनको साल भर में ये एक्सेस मिल रहा है। उनको साल भर में हम कुछ 5 शोज कॉम्प्लीमेंट्रीज दे रहे हैं, प्लस एवरी टाइम दिल गेट 20% डिस्काउंट इन फूड। प्लस ऐसा इतना ही नहीं, जो उन्होंने जो मेंबरशिप अमाउंट पेड कर रहे हैं, दैट इज़ फुल्ली रिडीमेबल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर एक अमाउंट की मेंबरशिप ली है तो उस मेंबरशिप का अमाउंट वो पूरी तरह से रिडीम कर सकते हैं, फिर उनको टॉपअप कर सकते हैं। सो इट इज़ दी विन विन सिचुएशंस एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अ जनता का क्लब और जनता का ऑफर वी कैन से। मतलब पूरा पैसा वसूल होगा जनता का, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसा का लगा, पूरा जलंधर इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। और स्पेशली द सिटी लाइक जलंधर बहुत प्यारी सिटी है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, सारी तरीके से बहुत चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो हम उसी को वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे वो चीज़ें फील करें। अब आप देखोगे, हमने एक नवरात्र उत्सव रखा है। इमेजिन जलंधर में लोग यहाँ पे आज शाम को दांडिया होने वाला है, क्या बात है, गरबा होने वाला है। सो दिस इज व्हाट एज आई सेड, दी सिनेपोर्ट इज ऑलवेज बीइंग अ यूनिक, हर यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहा है। मतलब कल्चर्स को यूनाइट कर दिया
आपने और सिनेपोर्ट एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो यहाँ पे आके सब कुछ एंजॉय कर सके। एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग। थैंक यू। सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं जासप्रीत कौर और आज हम पहुंचे हुए थे पीपीआर ग्रुप के सिनेपोर्ट क्लब में, जिसकी आज इनॉग्रेशन थी और इस इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे थे बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और उन्होंने इस सिनेपोर्ट क्लब का इनॉग्रेशन किया और लोगों से बातचीत की, मीडिया से इंटरेक्शन किया एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी के जलंधर में ये एक नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो लोगों को कैसा लगता है।